Good afternoon, everyone. Welcome to our reading session. Hope you all are doing well. We shall start the reading session. First, we will do 5 minutes of meditation. Let's practice meditation in form of affirmation today. Please close your eyes, sit comfortably, take a deep breath within, and tell yourself, in the infinity of life where I am, all is perfect, whole and complete. I see any resistance patterns within me only, only as something else to release. I don't have to be stubborn or frustrated on my resistance extra that we have to release from ourselves. They have no power over me. I am the power in my world. I flow with the changes taking place in my life as best I can. I approve of myself and the way I am changing. I am doing the best I can. Each day gets easier. I rejoice that I am in the rhythm and flow of my ever-changing life. Today is a wonderful day. I choose to make it so. All is well in my world. So here, so wonderful in this meditation, we have learned that I am not resisting with ever-changing life. I am rejoicing and I am in rhythm and flow of my ever-changing life. And what is the meditation teaching us? That today is a wonderful day and I choose to make it so. It is our power to choose. If we choose, then the day is wonderful with the small challenges that come across. All is well in my world. Thank you. You can now open your eyes and we'll start our reading session. So before starting the new part, I just want to recall what we have done, completed in the last session. In the last session, author taught us about the mirror work. Although author has taught about mirror work in the previous sessions also, but in the last session as well, she again focused on the mirror work. She said that if you want to have a joyous and fulfilling life, then affirmation in front of mirror will work as a best technique for this. She said that this is very wonderful thing which I think I missed last in the last session, that she said while practicing affirmation in front of a mirror, if you are smooth in telling the affirmation, means you are not hesitant and you are not resistant on that part. In anything where you are resisting or hesitation occurs while speaking the affirmations, then that part has to be worked on. Suppose in front of a mirror you are able to say I am beautiful and you are comfortable with it, means that area is not the area where you have to work. But if you are not able to say that I am a great student, I am successful, I will do very nice in my career, if you are resisting and you are not able to look into your eyes while speaking that affirmations, means this is the area where you have to work upon. So this is very beautiful what author taught us last
in the last session. Then again, one important thing was repeated pattern show us our needs. वी ऑलवेज हम डर जाते हैं, क्यों बार बार रिपीट हो रहा है, वही पैटर्न्स रिपीट हो रहा है, कितना हम घबरा जाते हैं, स्टक फील करते हैं, बहुत हारा हुआ सा फील होता है. सो जस्ट अ सेकेंड. Yes. So, author was telling us that repeated patterns show us about our needs. Suppose she was explaining us that it is not about the willpower or discipline. हमें ये नहीं सोचना है. उन्होंने ये समझाया कि वो जो रिपीटेड पैटर्न्स है ना, वो बस एक सिम्टम है. हम सिम्टम को चेंज करने अगर लग पड़ेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा. हमें कॉज को देखना है कि किस रीजन से ये रेजिस्टेंस है मेरे में. तो उस कॉज पे अगर हम वर्क नहीं करेंगे, तो जब तक हम मीन्स वो सिम्टम ना फिर बार बार निकल के आता रहेगा. तो आज के सेशन में ऑथर विलिंगनेस टू रिलीज द नीड, विलिंगनेस के बारे में बता रहे हैं कि हमारी इच्छा होनी चाहिए अंदर में. आज भी हमने एक सेशन में सीखा था कि अगर अंदर से 100% इच्छा है कोई भी चीज को बदलने की, तो यूनिवर्स, गॉड सब हमें रास्ता दिखाएंगे. तो वो 100% इच्छा कैसे होगा हमारे में, वो आगे हम पढ़ेंगे. सो ऑथर ये बता रहे, आई से टू क्लाइंट्स देयर मस्ट बी अ नीड इन यू फॉर दिस कंडीशन और यू वुडंट हैव इट. ऑथर हमें बार बार इस चीज में समझा रहे कि जो रिपीटेड पैटर्न्स है ना हमारे, वो हमारे ही अंदर कुछ तो नीड है जो रिपीट हो रहा है. ये सारे पैटर्न्स हमें उसको खोजना है कि क्या चीज है मेरे अंदर ऐसा जिसके कारण ये सिम्टम्स बार बार आ रहे हैं. Let's go back a step and work on the willingness to release the need. When the need is gone, you will have no desire for the cigarette or the overeating or the negative pattern. One of the first affirmation to use is I am willing to release the need for the resistance or the headache or the constipation or the excess weight or the lack of money or whatever. Say I'm willing to release the need for. If you are resisting at this point, then your affirmation cannot work. दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट. हमने ये सोचा है कि हेडेक हमें बार बार हेडेक है या कॉन्स्टिपेशन है या एक्सेस वेट से हम परेशान हैं या लैक ऑफ मनी, ये सब हमें रिलीज करना है. ऑथर ये हमारे मन में है कि मेरे को मेरा सिम्टम दिख रहा है कि मेरे पास पैसों की कमी है या मुझे हेडेक हो रहा है, एक्सेस वेट या कॉन्स्टिपेशन है, उसको मुझे रिलीज करना है. ये मुझे सिम्टम्स बार बार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं ऐसे बोलते वक्त रेजिस्ट करती हूँ दैट आई एम विलिंग टू रिलीज द नीड फॉर, ये हमारे ही अंदर कोई तो नीड है जिस वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं. तो ऑथर यही बोल रहे हैं, say I am willing to release the need for. If you are resisting at this point, then your affirmations cannot work. क्योंकि हमारे affirmations काम नहीं कर रहे मीन्स हमारा willingness to release the need for these symptoms में कमी रह रही है. The webs we create around ourselves need to be unwound. If you have ever entangled a ball of string, you know that the yanking and pulling only make it worse. You need to gently and patiently unravel the knots. Be gentle and patient with yourself as you untangle your own mental knots. Get help if you need it. Above all, love yourself in the process. The willingness to let go of the old is the key. That is the secret. ऑथर क्या बोल रहे हैं, हमने बचपन में देखा होगा या
एक छोटा सा एग्जाम्पल, हमारा जो ईयरफोन होता है वो भी कई बार इधर उधर ऐसे उलझ जाता है। बैग में हमने ऐसे ही रख दिया या कपड़ों के बीच में रख दिया, या ये सुतों का जो बंडल होता है, स्ट्रिंग का, बॉल ऑफ स्ट्रिंग, ये भी हमने बचपन में ऐसे एक्सपीरियंस किया होगा कि फंस जाता है इधर उधर। तो अगर हम उसको जेंटली एंड पेशेंटली नहीं खोलते हैं एक एक गांठ को, तो ये अगर हम हड़बड़ा जाते हैं खोलने में तो वो और भी वर्स हो जाता है। तो वही ऑथर भी समझा रहे हैं कि हमारे जो मेंटल नॉट्स है उसके साथ हमें पेशेंटली डील डील करना है। वी हैव टू लव आवरसेल्फ इन द प्रोसेस। द विलिंगनेस टू लेट गो ऑफ ओल्ड इज द की। विलिंगनेस चाहिए और उसमें प्यार चाहिए, 100% willingness. When I say needing the problem, I mean that according to our particular set of thought patterns, we need to have a certain outer effect of or experiences. Every outer effect is the natural expression of the inner thought pattern. To battle only on the outer effect or symptom is wasted energy and often increases the problem. ऑथर यहाँ पे समझा रहे हैं कि नीडिंग द प्रॉब्लम मतलब क्या। अब हम भी तो ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि भाई मुझे थोड़ा हेडेक चाहिए, जो हम बार बार कह रहे कि नीड को फोकस कर रहे हैं। हमें हेडेक नहीं चाहिए, हेडेक एक सिम्टम है, हमें हेडेक नहीं चाहिए। लेकिन कुछ नीड का मतलब यहाँ पे हो गया थॉट पैटर्न। हमारे पुराने थॉट पैटर्न्स कुछ ऐसे हैं जो हम रिलीज नहीं कर रहे, जिस थॉट पैटर्न को हम चेंज नहीं कर रहे। सपोज हम जिंदगी में बार बार फेल हो रहे हैं, कुछ हैबिट्स हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, हमारी इच्छा है कि ये सिम्टम जो आ रहा है वो सिम्टम नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हमारे अंदर थॉट पैटर्न है डीप इनबिल्ट कि शायद ये कि मैं तो डिजर्व ही नहीं करती हूँ या मुझसे ये होगा नहीं, कुछ तो ऐसा थॉट पैटर्न है जो रॉन्ग है। हम सिम्टम देख रहे हैं लेकिन वो थॉट पैटर्न पे वर्क नहीं कर रहे हैं। तो ऑथर ये बोल रहे हैं कि अगर आप आउटर इफेक्ट को पे काम करोगे तो वो काम नहीं हो पाएगा, हमें इनर थॉट पैटर्न पे काम करना है। ठीक है। तो फिर है आई एम अनवर्दी क्रिएट्स प्रोक्रेस्टिनेशन। If one of my inner belief system or thought pattern is I am unworthy, then one of my outer effect will probably be procrastination. After all, procrastination is one way to keep us from getting where we say we want to go. Most people who procrastinate will spend a lot of time and energy berating themselves for procrastinating. They will call themselves lazy and generally will make themselves out to feel that they are bad person. तो अगर हम ये सोच लेते हैं कि आई एम अनवर्दी, ठीक है, अंदर ही अंदर हमारा ये बिलीफ सिस्टम है, ये मेरा थॉट पैटर्न है दैट आई एम अनवर्दी, तो उसका आउटर इफेक्ट में क्या होगा, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करूंगी, चीजों को ज्यादा ही सोचने में और डिले करने में लगा दूंगी, और फिर एट लास्ट मैं अपने आप को एज अ बैड पर्सन का लेबल दे देती हूँ। लेकिन ऑथर हमें क्या समझा रहे कि प्रोक्रास्टिनेशन, लेजीनेस या फिर टाइम वेस्ट करना, ये सब तो एक सिम्टम है। उसका ये आउटर इफेक्ट है, किसका आउटर इफेक्ट, जो मेरा इनर बिलीफ है कि मैं अनवर्दी हूँ। तो अगर मैं अनवर्दी वाला चीज को हटाकर इसको प्लेस विलिंगनेस के साथ ये नहीं सोच लूंगी कि आई एम वर्दी, तब तक मेरे आउटर इफेक्ट में चेंज नहीं आएगा। Resentment of another's good. I had a client who loved attention and usually came to class late so he could create a stir. He had been the baby of 18 children and he came last on the list of getting. As a child, he watched everyone else have, while he just longed for his own. Even now, when someone had good fortune, he would not rejoice with them. Instead, he would say, "Oh, I wish I had that," or "Oh, why don't I ever get that?" His resentment of their good
was a barrier to his own growth and change. तो यहाँ पे ऑथर समझा रहे कि उनके पास एक क्लाइंट था, उनको अटेंशन चाहिए होता था, ही लव्ड अटेंशन, एंड वो जानबूझ के क्लास में लेट आते थे ताकि वो अटेंशन को क्रिएट कर सके अपनी तरफ। वो कह रहे कि वो हमेशा दूसरों को जीतता हुआ या उनके अच्छे फॉर्च्यून को देखते थे, बट वो खुद कभी कोशिश करके आगे नहीं बढ़ते थे। उनको ये उनका एक आदत पड़ गया था कि वो दूसरे को के गुड को दूर से देख के थोड़ा सा रिजेंटमेंट क्रिएट होता था उनमें, लेकिन वो खुद का ये जो उनका रिजेंटमेंट था एंड रिजॉइस वो नहीं करते थे दूसरों की खुशियों में, एंड खुद को जानबूझ के पीछे रखते थे। ये उनका अ, ये उनके लिए एक बैरियर हो गया था खुद के ही ग्रोथ नहीं होने के लिए। देन दूसरा, सेल्फ वर्थ ओपन्स मेनी डोर्स। A client who was 79 came to me. She taught singing, and several of her students were making television commercials. She wanted to do this, but was afraid. I supported her totally and explained, there is nobody like you. Just be yourself. I said, do it for the fun of it. There are people out there looking for exactly what you have to offer. Let them know you exist. उनके पास, ऑथर के पास एक क्लाइंट थी, वो 79 ईयर्स की थी, वो सिंगिंग की सिखाया करती थी। उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो टीवी शोज करते थे। वो भी टीवी शो करना चाहती थी लेकिन वो डरती थी। तो ऑथर ने उनको समझाया, एक्सप्लेन किया कि आपके जैसा कोई भी नहीं है, आप उसको बस एक फन के जैसे करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम दूसरों को कर देखता हुआ कि दूसरे इतना अच्छा कर रहे हैं, तो ये सोच के हम अफ्रेड हो जाते कि हम उनके तरह कर पाएंगे कि नहीं, हम अच्छा कर पाएंगे कि नहीं, सक्सेसफुल होंगे कि नहीं। तो ऑथर ये समझा रहे कि जो भी हमारा कुछ ख्वाहिश होता है, ड्रीम होता है करने का, कुछ हॉबी को इम्प्लीमेंट करने का, उसको फन के जैसे करो, ज्यादा सोचना नहीं है। देर आर पीपल आउट देयर लुकिंग फॉर एग्जैक्टली, ऑथर ने उनको समझाया कि आप में जो कला है, जो क्वालिटी है, लोग उसी कला को एग्जैक्टली खोज रहे हैं। So she called several agents and casting directors and said, I am a senior citizen and I want to do commercials. In a short time, she had a commercial, and since then she never stopped working. I often see her on TV and in magazines. New career can start at any age, especially when you do it for the fun of it. सो ऑथर बता रहे कि उनका, हमें हीलिंग के लिए रास्ते तो मिलते हैं लेकिन कई बार हमारा एक्सेप्टेंस पावर कितना होता है उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। तो ऑथर की जो क्लाइंट है उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से उनका बात को समझा और स्वीकारा, जिस वजह से फिर उन्होंने एक्शन भी लिया। उन्होंने बहुत सारे क्लाइंट्स को कॉल किया, कास्टिंग डायरेक्टर को कॉल किया एंड बताया कि मैं ऐसे सीनियर हूँ लेकिन मैं कमर्शियल्स करना चाहती हूँ। विद इन अ शॉर्ट टाइम उनको बहुत सारे टीवी शोज मिल गए, एंड आज भी ऑथर उनको बहुत सारे टीवीज में देखते हैं, टीवी शो में। सो शी इज एक्सप्लेनिंग, ऑथर इज एक्सप्लेनिंग अस कि न्यू करियर कैन स्टार्ट एट एनी एज, ठीक है, स्पेशली व्हेन यू डू इट फॉर द फन ऑफ इट। तो ये चीज कल मैंने एक व्हाट्सएप स्टेटस में भी पढ़ा था, that that just start at the age of 40, start early in the morning, start late in the evening, anyway जब भी आप स्टार्ट करो, नो प्रॉब्लम, जस्ट स्टार्ट। देन नेक्स्ट टॉपिक इज, self criticizing is totally missing the mark. It will only intensify the procrastination and laziness. The place to put the mental energy is into releasing the old and creating a new thought pattern. Say, I am willing to release the need to be unworthy.
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो नीड है ना हमारे अंदर, मीन्स जो हमारे पुराने थॉट पैटर्न्स है जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये बहुत सच्ची बात है, क्योंकि ना माइंड नया टास्क नहीं करना चाहता, उसको मेहनत लगता है चेंज करने में। तो वो जो पुराना चल रहा है उसको कंफर्टेबल लगता है, तो हम उस नीड को, उस पुराने थॉट पैटर्न्स को चेंज नहीं करते हैं। हम सिम्टम को चेंज करना चाहते हैं, और फिर ना हम पावरलेस फील करते हैं, क्योंकि हम गलत जगह पे काम कर रहे हैं। तो आई एम willing to release the need to be unworthy. I am worthy of the very best in life, and I now lovingly allow myself to accept it. This is wonderful line. We all can use this for our own healing. As I spent a few days doing this affirmation over and over, my outer effect pattern of procrastination will automatically begin to fade. प्रोक्रास्टिनेशन तो अभी मेजरली सबका प्रॉब्लम हो गया है, ज्यादा सोचना, डिले करना चीजों को, ओवर थिंकिंग करना। सो these affirmation will help us to release the pattern of procrastination. As I internally create a pattern of self worth, क्यों क्यों होता है ऐसा इस affirmation से? वर्थ क्रिएट करते हैं, और हमारे लाइफ में सिम्टम्स क्यों बार बार रिपीट होते रहते हैं, सेम सेम, जो हमें नहीं चाहिए होते हैं, क्योंकि हम अंदर में पैटर्न क्रिएट करके रखे कि हम अनवर्दी हैं। तो ये जो अफर्मेशन है वो हेल्प करेगा इंटरनली पैटर्न को चेंज करने के लिए। हम अनवर्दी वाले पैटर्न को चेंज करेंगे सेल्फ वर्थ के पैटर्न में। तो एज आई इंटरनली क्रिएट अ पैटर्न ऑफ सेल्फ worth, then I no longer have the need to delay my good. Do you see how this could apply to some of the negative patterns or outer effect in your life? ऑथर पूछ रहे हैं यहाँ पे, क्या आप अपने लाइफ के किसी नेगेटिव पैटर्न या आउटर इफेक्ट में इस चीज को अप्लाई करता हुआ फील कर रहे हैं, कर पा रहे हैं? तो पर्सनली यस, मैं फील कर पा रही हूँ कि मुझे ये लाइन यूज करना है। आई एम विलिंग टू रिलीज द नीड टू बी अनवर्दी, बिकॉज समवेयर द ओल्ड पैटर्न्स इनसाइड मी, उस पे तो मैंने कभी वर्क किया ही नहीं, उतना कभी ध्यान ही नहीं दिया कि यार ये ओल्ड पैटर्न्स का जो नीड है ना मेरे अंदर, उसको रिलीज करना है। दिस इज वेरी गुड लेसन फॉर अस। डू यू सी हाउ दिस could apply to, okay, ये हमने पढ़ लिया। Let's stop wasting time and energy putting ourselves down for something we can't help doing if we have certain inner beliefs. Change the beliefs. ऑथर कह रहे कि टाइम, एनर्जी, वो सिम्टम्स पे जो हम वर्क करते रहते हैं ना, उस पे लगाना बंद करके वो बिलीव्स के ऊपर हमें काम करना शुरू करना है। हमें बिलीव्स को ही चेंज करना है। No matter how you approach it or what subject matter we are talking about, we are only dealing with thoughts and thoughts can be changed. Yes. तो ऑथर ये कह रहे हैं कि हम कोई भी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर बात कर लें या कोई भी अप्रोच अपना लें, द थिंग, द मेन थिंग ऑन विच वी आर डीलिंग इज आर थॉट्स। अगर हम, और थॉट्स हमें चेंज करना है, बस हमें यही ध्यान रखना है मेजरली, कि हमारा थॉट्स जो है उसको हम चेंज करने में लग पड़े। when we want to change a condition we need to say so, I am willing to release the pattern within me that is creating this condition। ठीक है, हम कंडीशन को चेंज करना चाहते हैं ना, लेकिन ऑथर क्या कह रहे हैं, आई एम विलिंग टू रिलीज द पैटर्न विद इन मी। एक्चुअली हमें कंडीशन को चेंज नहीं करना है, हमें पैटर्न को चेंज करना है जो कंडीशन को बार बार लेके आ रहा है हमारे सामने। सो आई एम विलिंग टू रिलीज द पैटर्न विद इन मी creating this condition. This is wonderful lesson. You can say this to yourself over and over every time you think of your illness or problem. The minute you say, you are stepping out of the victim, you are stepping out of the victim class. You are no longer helpless. You are acknowledging your own power.
You are saying, I am beginning to understand that I created this. I now take my own power back. I am going to release this old idea and let it go. तो ऑथर ये बोल रहे हैं कि जितने बार हम अपने आप को ये याद दिलाएंगे कि हमें रिलीज होना है हमारा कोई इलनेस या प्रॉब्लम से, तो हम ये जो विक्टिम क्लास प्ले हो जाता है हमसे, क्योंकि हम अगर उस ओल्ड बिलीफ को चेंज नहीं करते हैं देन वी बिकम अ विक्टिम। हमें हेल्पलेस फील होता है। लेकिन जिस टाइम हम बार बार जब ये अफर्मेशन बोलेंगे दैट आई एम विलिंग टू रिलीज द पैटर्न, वो पैटर्न को मुझे अब बदलना है, तो वो हेल्पलेस नहीं फील होगा, बल्कि वी विल understand that I have only created this and now I am taking my power back. Self criticism. I have a client who will eat a pound of butter and everything else she can get a hold of when she cannot bear to be with her own negative thoughts. The next day she will be angry at her body for being heavy. When she was a little girl, she would walk around the family dinner table finishing off everyone's leftovers and eating a whole stick of butter. The family would laugh and think it was cute. It was almost the only approval she got from her family. यहाँ पे ऑथर कोई क्लाइंट के बारे में बता रहे हैं कि वो जब परेशान होती है अपने नेगेटिव थॉट से तो वो एक पाउंड बटर खा लेते हैं एंड एवरीथिंग, और जो भी उनको अपने आसपास मिलता है वो खा लेते हैं। ऐसा हमारे साथ भी होता है। हम अगर कुछ नेगेटिव पैटर्न्स में या बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो कई बार हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। तो ये ऑथर जिनके बारे में बता रहे हैं वो फिर खा तो लेते थे जब वो परेशान होते थे, लेकिन नेक्स्ट डे ही फिर वो अपनी बॉडी को हैवी होने की वजह से अपने बॉडी के ऊपर गुस्सा करते थे। फिर अ, वो उस ऑथर उस क्लाइंट के बारे में ये बता रहे कि जब वो छोटी बच्ची थी, when she was a little girl, she would walk around, वो अपने फैमिली के डिनर टेबल में जितने भी बच जाते थे ना फूड, उसको खत्म कर देती थी एंड वो बटर भी खा लेती थी। एज अ फैमिली रिस्पॉन्स फैमिली उन पे हंसती थी, थिंकिंग दैट इट वाज क्यूट। बस वो क्यूट है सोच के हंसती थी। यही सिर्फ एक अप्रूवल है। जब हम कोई बच्चों के ऊपर हंस देते हैं ना क्यूट समझ के, तो उनको तो यही लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। So this was the only approval she got from her family. When you scold yourself, when you berate yourself, when you beat yourself up, you do who do you think you are treating this way? Almost all of our programming, both negative and positive, was accepted by us by the time we were 3 years old. Our experiences since then are based upon what we accepted and believed about ourselves and about life at that time. The way we were treated when we were very little is usually the way we treat ourselves now. The person you are scolding is a 3 year old child within you. वो जो सेंसिटिव एज होता है, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, उसने जो नेगेटिव या पॉजिटिव अडॉप्ट कर लिया था उस टाइम पे जब वो एकदम छोटा सा था, वही चीज जो उसके आउटर एक्सपीरियंसेस में उस समय होता था, वो अभी खुद के साथ वही ट्रीट करता है जब वो बड़ा हो जाता है। तो ऑथर यही समझा रहे हैं कि जो जिस तरह से हम छोटे से जब थे, जिस तरह से हम ट्रीट हुए, उसी तरह से आज हम खुद को ट्रीट करते हैं। तो जिस पर्सन को हम अंदर ही अंदर कोसते रहते हैं ना, वो ऑथर ये बता रहे कि वो आप जो बड़े हो गए हो वो नहीं हो, बल्कि आप वो छोटे से 3 साल के बच्चे को कोसते हो। If you are a person who gets angry at yourself for being afraid and fearful, think of yourself as being 3 years old. If you had a little 3-year-old child in front of you who was afraid, what would you do? ऑथर बोल रहे हैं कि अगर आप अपने ऊपर, सपोज मैं बहुत डरती हूँ, मैं डरपोक हूँ, ठीक है, सपोज मैं बहुत डरती हूँ और इसी वजह से मैं खुद पे गुस्सा होती रहती हूँ कि यार
कितना डरती है, कितना डरती है, ये तो डरपोक है। ठीक है, एक तो डर का हैबिट है, ऊपर से मैंने गुस्सा किया खुद के ऊपर। ओके, तो ये मुझे वीक करेगा। लेकिन ऑथर यही समझा रहे हैं कि सपोज आप सोचो कोई 3 साल का छोटा सा बच्चा आया आपके पास डरते हुए, तो आप क्या बोलोगे, उसको कैसे समझाओगे? हाउ वुड यू डील विद दैट पर्सन? सपोज वो डर के आया है, छोटा सा कोई 3 साल का बच्चा, तो हम कितना प्यार से उसको अप्रोच करेंगे, उसको गले से लगा लेंगे, उसको बताएंगे कि यार डरने की तो कोई बात ही नहीं है, हम सब तेरे साथ है, किस बात से तू घबरा रहा है। हम ऐसे ही करेंगे ना छोटे से प्यारे से बच्चे के साथ। तो ऑथर वही बोल रहे हैं, साथ करो। तो अब हम पढ़ते हैं। If you had a little 3-year-old child in front of you who was afraid, what would you do? Would you be angry at him? Or would you reach out your arms and comfort the child until he felt safe and at ease? हम छोड़ते भी नहीं है एक बार समझा के बच्चों को, हम उनको पूरा कंफर्टेबल करके छोड़ते हैं. The adults around you when you were a child may not have known how to comfort you at that time. Now you are the adult in your life, and if you are not comforting the child within you, then it is very sad indeed. ऑथर बोल रहे हैं कि जब आप छोटे बच्चे थे, आपको उस समय पे आपके जो अडल्ट थे सामने, वो अडल्ट ने आपको उस तरह से नहीं समझाया, तो वो तो बात बीत गई, वो तो पास्ट हो गई। आज हम खुद अडल्ट हैं, एंड अगर हम अपने अंदर जो 3 साल का बच्चा है उसको नहीं संभाल पाएंगे, तो ये बहुत सैड है, ये बहुत सैड बात हो जाएगी। मतलब कि 3 साल के बच्चों को हमें, जो बच्चा हमारे अंदर है उसको उतना ही प्यार देना है जितना हम अपने बाहर किसी भी बच्चे को देते हैं. Okay, so what was done in the past is done and is over now. But this is the present time, and you now have the opportunity to treat yourself the way you wish to be treated. A frightened child needs comforting, not scolding. Scolding yourself only makes you more frightened, and there is nowhere to turn. When the child within feels unsafe, it creates a lot of trouble. Remember how it felt to be belittled when you were young. If it feels the same way now to that child within. ऑथर यही बोल रहे हैं कि पास्ट में जो हुआ वो तो हो गया, लेकिन अब अगर आप उस डरे हुए बच्चे को जो आपके अंदर है उसको और डांट के डराते हैं, तो कुछ भी सुधरेगा नहीं. ऑथर ये बोले कि उस चीज को याद करो जब आप छोटे थे एंड आप वही सफरिंग से क्रॉस किए थे. तो जैसा आप उस समय फील किए थे ना, वैसा ही अंदर वाला बच्चा आज भी फील करता है. So be kind to yourself. Begin to love and approve of yourself. चाहे कुछ भी हो रहा हो. Be kind to yourself. बाहर नहीं देखना है कि कौन मुझसे काइंड हो रहा है, कौन मुझसे लविंग है, या कौन मुझे अप्रूव कर रहा है. हम बाहर के अप्रूवल को बहुत ध्यान देते हैं. बाहर के सारी चीजों को हटा के खुद के साथ, मैं खुद के साथ कितनी काइंड हूँ, कितनी लविंग हूँ, एंड मैं खुद को कितना अप्रूव करती हूँ, ये बहुत जरूरी है. That's what that little child needs in order to express itself at its highest potential. हम सब अपने लाइफ में हाईएस्ट पोटेंशियल एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो हर एक की इच्छा होती है. एंड ये संसार अबेंडेंस का संसार है. किसी एक के लिए भी ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्टेज है, अबेंडेंस ही अबेंडेंस है. तो हम हाईएस्ट पोटेंशियल एक्सप्रेस कर पाएंगे, सब सब कर पाएंगे. लेकिन पहले हमें खुद के साथ काइंड होना है, खुद को लव करना है, खुद को अप्रूव करना है. अब चैप्टर 7, हाउ टू चेंज, हमने ये. हाँ थैंक जी यू सिस्टर. थैंक यू सो मच। आई थिंक हमारा टाइम हो गया तो वी कैन स्टार्ट टुमारो न्यू. चैप्टर 7। हाँ जी. हाँ जी, जरूर जरूर. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सेशन था, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सिस्टर, मेरे को भी थैंक बहुत ही अच्छा लगा ये चैप्टर. हाँ क्योंकि जी।
बहुत ही लर्निंग था। अफर्मेशंस काम नहीं करते या फिर अफर्मेशंस पे कॉन्फिडेंस भी नहीं आता, क्योंकि कई बार वो जो ओल्ड पैटर्न है, वो जो नीड की बात ऑथर ने कही ना, कि वो ओल्ड पैटर्न्स जो है वो तो अंदर ही अंदर हमारी कोई हम्म। जरूरत है। यस। हम्म। तो आई लर्नड, आई रियली, इट विल बी अ वेरी हेल्पफुल सेशन फॉर अस। हाँ जी, हाँ जी, डेफिनेटली मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। और वो सेल्फ क्रिटिसिज्म की भी जो बात थी, अ, हाँ उसमें भी हम बहुत ज्यादा, सेल्फ क्रिटिसिज्म का जो एक होता है, तो उसमें भी आई थिंक बहुत हेल्पफुल रहा कि हाँ नो मैटर व्हाट हैपेंस यू डोंट हैव टू क्रिटिसाइज, जस्ट लर्न एंड इम्प्रूव, आई गेस। हाँ। और जैसे कि ऑथर ने कहा, 3 साल का छोटा बच्चा, तो हम भी जैसे कैसे प्यार से बात करते हैं, हम सब बच्चों से, बच्चों के प्रति हम सबका बहुत प्यार होता है ना। तो अपने हम्म। अंदर भी वो ही छोटा बच्चा है। हम सेल्फ टॉक वैसे ही करें जैसे कोई 3 साल के बच्चे के साथ हम कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस विल राइट, वर्क फॉर अस। तीन राइट, साल के राइट, बच्चे। हम्म। राइट। हाँ जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी सिस्टर। और ओके। एक चीज जो हाँ जी। थोड़ा सा था, कि करुणा सिस्टर ने जो एक टास्क दिया था, 24 आवर्स मिरर में, जब भी मिरर के सामने जाओ तो अप्रिशिएट करो खुद को। तो मैंने हम्म। तो पर्सनली ये टास्क अभी तक किया नहीं है। तो अगर हम सब फिर से उस चीज को करें, ये मिरर राइट, वर्क भी बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है। तो मिरर में राइट, तो हम जाते ही है, 3-4 बार तो चले ही जाते होंगे। तो वो राइट, तीन राइट। चार बार से ज्यादा ही जाते होंगे, तो उस समय बोला करेंगे खुद को। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल नहीं, दैट्स वेरी ट्रू। ये प्रैक्टिस करना चाहिए। तो हाँ। डेफिनेटली ये करेंगे अभी। हाँ जी। हाँ जी, थैंक यू। ओके सिस्टर। ओके, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, सो मच। थैंक यू।